السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سنی مسلمان وفادار رسول میرے سر کے تاج ہیں، تمام دیوبندی وہابی غدار رسول دشمن رسول جوتے کی نوک پر۔ جناب حضرات، اس چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا اوریجنل مجروح چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج کل وہابی دیوبندی کچھ زیادہ ہی ذلیل ہو رہے ہیں اور کچھ زیادہ ہی مجھے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تیرے خلاف FIR درج کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں تیرا چینل بند کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ تو سوچ لینا کہ تیرا کیا ہوگا۔ بہرحال طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بہرحال مجھے دھمکیوں سے ڈر نہیں ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیصلہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، آئیے آج ایک عجیب کارنامہ ہوا ہے۔ ایک دیوبندی عجیب طرح کا آیا اور اس نے عجیب طرح کے کچھ سوال جواب کیے اور اپنے منہ سے اپنے 4 اکابرین کو کفر کے گھاٹ اتار گیا۔ علی اصغر دیوبندی، مفتی عمیر قاسمی اور تم دنیائے دیوبندیت کے جتنے بھی بڑے بڑے شیطان ہو، انہیں کیوں نہیں سمجھاتے؟ کیوں یہ تمہارے لوگوں کو کفر کے گھاٹ اتار دیتے ہیں؟ تم کیسے جاہلوں کو اپنی جماعت میں شامل کر لیتے ہو؟ جو مجوری کرنے تو آتے ہیں، بحث و مباحثہ کرنے تو آتے ہیں، مگر اپنے ہی منہ سے، اپنی ہی زبان سے اپنے ہی اکابرین کو کفر کے گھاٹ اتار جاتے ہیں۔ ارے میرے کتنی انگنت آڈیو ایسی پڑی ہوئی ہیں، پتہ نہیں کتنی آڈیو ہیں اور کس کس کے چینل پہ میری پڑی ہوئی ہیں۔ ہر آڈیو میں کوئی نہ کوئی شخص اپنے منہ سے، اپنی زبان سے، اپنے الفاظوں سے اپنے ہی اکابرین کو کفر کے گھاٹ اتار کے جاتا ہے۔ ابھی تک کوئی میری ایک ایسی آڈیو نہیں ہے جس میں کسی بھی دیوبندی نے، بڑے سے بڑے عالم نے، بڑے سے بڑے دیوبندی نے میری شکست والی آڈیو ڈالی ہو، جس میں میری کوئی شکست ہوئی ہو، میں نے اپنے کسی بھی اکابرین کو جو ہے معاذ اللہ غلط ثابت کرایا ہو۔ نہیں، ایسا ابھی تک میرا کوئی آڈیو نہیں ہے۔ میں دنیا دیوبندیت کے بڑے بڑے شیطانوں کو چیلنج کر کے بولتا ہوں، مگر میرے چینل پہ جا کے دیکھو، یا میرے سے علاوہ دیگر چینلوں پہ جو میری گفتگو جاتی ہے ان پر بھی جا کے دیکھو، تمہارے منہ سے، تمہارے اکابرین کے منہ سے، جو تمہارے بڑے بڑے مفتی ہیں، ان سب سے میں تمہارے اکابرین کو کافر ثابت کرواتا ہوں۔ خیر، اللہ حافظ۔ یہ آڈیو آپ پورا سنیں۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی کون صاحب؟ السلام علیکم۔ جی آپ کون بھائی جان؟ جی میں محمد علی۔ جی محمد علی۔ محمد علی؟ جی ہاں۔ اچھا، جی آپ کا مسلک؟ جی میں سنی ہوں۔ مطلب دیوبند والے کہ بریلی والے؟ نہیں، پہلے میں بریلی والے تھے، ابھی میں دیوبند والا ہو گیا۔ اچھا، تو دیوبند والے سنی کہاں ہیں؟ مطلب میرا پورا خاندان ہے۔ کیا خاندان ہے؟ سنی، میرا پورا خاندان سنی ہے، میں اکیلا دیوبند والا بن گیا ہوں۔ ہاں، تو آپ حق جماعت کو چھوڑ کر باطل میں گئے نا۔ آپ نے جو ہے بدعت کی، اور ہر بدعت جو ہے وہ آپ کے بزرگوں کے نزدیک، آپ کے علماء کے نزدیک، علماء دیوبند کے نزدیک جو ہے وہ حرام ہے، گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے کے جانے والا کام ہے۔ بات صحیح ہے آپ کی، ہر گرما۔ تو یہ آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتے، جیسے کہ میں نے نا اس لیے مطلب دیوبندی میں چلے گئے کہ وہ تو کیا ہے کہ شرک کا بات نہیں کرتے، مطلب اپنے آپ کو کسی کو جہنم کی بات نہیں بولتے۔ آپ نے تو کیا ہے کہ علی صاحب کو جہنم ٹھہرا دیتے ہیں، وہ جہنم میں جائے گا، یہ جہنم میں جائے گا، اس لیے ہم چھوڑ دیا۔ اور اب دادا لوگ بھی بولتے ہیں کہ تو کیوں چلا گیا اس کو، بولے نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ جی ہاں۔ ان میں ایک جو ہے وہ جنتی ہوگا، باقی جہنمی ہوں گے۔ ہاں، بات صحیح تو ہے۔ جہنم میں جانے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ زیادہ ہے نا جہنم میں جانے والے۔ کتنی ہے وہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔
72। 16 है ना? जी, कितना बोले आप? 73 तबके, 73 फिरके, 73 जमातें, 73 गिरोह। और 73 गिरोह। हाँ, मेरे आका की उम्मत में होंगे। उनमें सिर्फ एक ही जो है जमात हक पर होगी, बाकी 72 के 72 जहन्नमी होंगे। तो जहन्नमी कितने हुए? जहन्नमी ज्यादा हुए, लेकिन इसमें क्या देखिए 72 हुए ना। मेरे आका ने तो हाँ, सबको जहन्नमी बताया, 72 के 72 को जहन्नमी बताया। हम तो गुस्ताखे रसूल को ही जहन्नमी कहते हैं ना। हाँ बात सही है, लेकिन कौन हिसाब से देवबंदी नबी को नहीं मानते, बताइए। अच्छा, जी बताऊंगा इंशाल्लाह, टेंशन मत लीजिए। ये बताइए भाईजान। जी बोलिए। ईमान वाला वही होगा ना जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेगा। जी हाँ, सही बात है, मोहब्बत करेगा तो वही ईमान वाला होगा। आपकी बात। नमाज कितनी ही पढ़े, ज़कात कितनी ही दे, हज कितने ही करे, है ना, लोगों को खाना कितना ही खिलाए, लोगों की मदद कितनी ही करे, समझे, और वो हमारे नबी से मोहब्बत ना करे, क्या ईमान वाला है? जी नहीं, वो ईमान वाला नहीं हो सकता जो नबी से मोहब्बत ना करे। अच्छा, तो जितनी नमाजें उसने पढ़ी हैं, जितने उसने सजदे किए हैं, जितने उसने हज किए हैं, जितना लोगों को खाना खिलाया है, जितना लोगों को पानी पिलाया है ना, हर तरह का उसका अमल बर्बाद है ना? जी जी बर्बाद है ना? जी हाँ, माशाअल्लाह। तो ये बताइए भाईजान, जी, मैं आपके थानवी जी को टारगेट कर रहा हूँ पहले। हाँ, थानवी जी का इल्म और आपका इल्म क्या दोनों का सेम है? देखिए, हम आपको पहले क्या बोले थे कि मैं पहले मतलब मेरा पूरा खानदान है ना। देखिए, आपकी बात मैंने समझ ली। अब आप ये समझना चाह रहे हैं ना कि ये गुस्ताखे रसूल कैसे हैं, दुश्मनाने रसूल कैसे हैं। जी हाँ, कैसे? बस मैं आपको समझाना चाहता हूँ, अगर आप समझना चाहते हैं तब। हाँ तो समझाइए। अगर नहीं, और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त तक किसी को गुमराह नहीं करता जब तक के उसको हक और बातिल की पहचान ना हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला जब तक उसको हक और बातिल की पहचान ना करा दे, उसके सामने हक वाज़े ना कर दे। जी समझे हजरत? जी हम समझ गए। देवबंदियों में रहने वाले 85% लोग अनजान हैं, धोखे में हैं, नादान हैं, और अक्सर लोग उनमें कम इल्म रहते हैं, कम मतलब पढ़े लिखे नहीं रहते ज्यादा। जी हाँ, और अल्लाह तबारक व तआला जिससे मोहब्बत का इरादा फरमाता है उसे जो है अपने दीन इस्लाम की समझ अता फरमाता है, और जिससे अल्लाह तबारक व तआला छीन लेता है उसकी अक्लें छीन लेता है। बात सही है आपकी, जो जिसे दिन लेता है अक्ल छीन लेता है, कैसे छीन लेगा बताइए। हाँ, बता रहे हैं भाईजान, हाँ बताइए। इंशाअल्लाह फैसला हो जाएगा। तो मैंने आपको बोला था कि थानवी जी का इल्म और आपका इल्म क्या सेम है? जी नहीं, देखिए सेम इसलिए, देखिए जो मेरे नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए हैं उसके बाद से मेरा सेम है। अशरफ अली थानवी का जो भी मेरे लिए कॉल है, अगर वो अच्छा है, सच्चा है, तो हम उस पर इल्म करते हैं, ठीक है। अगर गलत है तो हम उसको छोड़ के हम उसको नहीं मानेंगे, समझ आया। अगर अशरफ अली थानवी का अगर उसका कॉल सच्चा होगा, अच्छी बात होगी तो हम उसको लेंगे, खराब बात होगा तो उसका कॉल हम छोड़ देंगे। जैसे अगर मेरे नबी से बात, देखिए ये क्या हुआ कि कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा हाँ पाप, ये क्या है जी? कड़वा थू थू और मीठा मीठा हाँ पाप, ये क्या है? ये तो कोई बात ही नहीं हुई, ये तो दोगली पॉलिसी होगी। कैसे? ऐसा थोड़ी नहीं है। देखिए, आपने कहा जो उसकी सही बात है हम उसको ले लेंगे और जो गलत बातें छोड़ देंगे। क्या अल्लाह तबारक व तआला ने, शरीयत ने और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इसकी इजाजत दी है? अरे अल्लाह तबारक व तआला तो फरमाता है कि किसी से मोहब्बत करो तो वो भी अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए, अल्लाह के लिए करो। किसी से नफरत करो तो वो भी अल्लाह के लिए करो। किसी को दो तो वो भी अल्लाह के लिए, और ना दो तो वो भी अल्लाह के लिए। जी बात सही है। आपका हर काम अल्लाह की रजा के लिए होना चाहिए। तो मेरा हर एक काम है ना अल्लाह के लिए ही होता है, अल्लाह के रजा के लिए होता है, ऐसा बात नहीं है। हाँ, तो मेरी बात तो सुन लीजिए जनाब, जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं पूछ रहा हूँ,
सीधा सीधा जवाब दीजिए, वरना अगर नहीं करना चाहते हैं, नहीं जवाब देना चाहते हैं, या जवाब नहीं है आपके पास तो कॉल काट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। मेरे पास जवाब है ना, तो मैं आपको जवाब तो दिया अच्छा, ना। कितने पढ़े लिखे हैं आप? जी मैं नजराना किया हूँ, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं। नजराना किए हैं आप? जी नाजरा बोलते हैं, नजराना नहीं बोलते। हाँ नाजरा। हाँ, नजराना होता है कि हमने किसी को हदियतन कुछ तोहफा दिया या कुछ पैसा दिया, ठीक है। जी हाँ, जी। कोई भी हमने सामान जो है उसको दिया तोहफे में, ये होता है नजराना। बात सही, सुनिए देखिए, मेरे को क्यों गलत लगा, मतलब मेरे दादा वाला सब। देखिए ये बताइए आप मुझे, जिस जमात में आपके बाप दादा हैं क्या वो गलत है? आप सीधा सीधा बताइए, मैं तुम्हें कुछ नहीं समझाऊंगा। अब ये बताइए। देखिए मेरा तुम बाप समझने दादा की तुम समझने की सलाहियत में नहीं हो। अब मैं वो नहीं समझाऊंगा, अब ये समझाऊंगा। जब ये पूछूंगा कि जो तुम्हारे बाप दादा है जिस रास्ते पर, वो गलत है ना? जी मेरे बाप दादा गलत है, ठीक है, गलत है ना? जी हाँ गलत है। तो वो मुशरिक है, मुसलमान नहीं है ना? मुशरिक हम कैसे, मुसलमान है, लेकिन वो है ना, मतलब किधर घूम गए, गुमराही की तरफ घूम चुके हैं मेरे बाप दादा। अच्छा एक मिनट, ठीक है। अच्छा एक मिनट। तो पहले तुम थे कि तुम्हारे बाप दादा थे? अच्छा आपसे एक सवाल करता हूँ। फिर वही बात, मुझसे सवाल मत करो, मेरे सवाल का जवाब दो। पहले मेरा बाप दादा थे। तुम्हारे बाप दादा थे ना, तो तुम ज्यादा जानते हो या तुम्हारे बाप दादा ज्यादा जानते हैं? मेरा बाप दादा ज्यादा जानेंगे ना। तो जब बाप दादा ज्यादा जानेंगे तो वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, फातिहा दरूद नियाज मिलाद करते हैं, या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत करते हैं, तो इसमें हरज की बात क्या है, गलत बात क्या है? और तुम चले गए उन लोगों में जिन लोगों का अकीदा ये है माज़अल्लाह के खुदा छोड़ बोल सकता है, और जो काम बंदे कर सकते हैं वो सब माज़अल्लाह खुदा भी कर सकता है। जिनका ये अकीदा है कि माज़अल्लाह अब भी कोई नबी पैदा हो सकता है, जिनका ये अकीदा है माज़अल्लाह कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो माज़अल्लाह आखिरी नबी जो है माज़अल्लाह है, मगर जमाने के एतबार से नहीं है, अब भी कोई नबी पैदा हो सकता है। हुजूर को आखिरी नबी मानना ये अवाम का ख्याल है माज़अल्लाह, समझे? उन लोगों में तुम चले गए जिनका ये अकीदा है माज़अल्लाह कि अब भी कोई रहमतुल आलमीन आ सकता है, अब भी कोई रहमतुल आलमीन जो है वो हो सकता है माज़अल्लाह। अच्छा आप ये बहुत सारी बातें मैं आपको बता सकता हूँ, समझे? तो ये बताइए, एक मिनट पहले मेरी बात को सुनो। आप अगर समझने की सलाहियत में हो तब, अगर आपने समझने के लिए कॉल किया है, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला किसी को उस वक्त तक गुमराह नहीं करता जब तक कि उसके सामने हक और बातिल को वाज़ेह न कर दे। तो हक और बातिल की पहचान, हाँ, हक और बातिल की पहचान जब तक उसे ना हो जाए, बात कैसे समझेंगे, ऐसा ही नहीं समझेंगे जैसे। तो तुम्हारे समझने की बात ही नहीं। अपने मुफ्ती को लाइन पे लाओ, अब मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगा, मुफ्ती को लाइन पे लाओ। अब मेरे मुफ्ती अभी तो शायद नमाज पढ़ने हो गए हो ना, तरावी पढ़ने। अरे अभी अजानें हो रही हैं। मेरा भाई है मुफ्ती, समझ में आया? तो अपने भाई से मुफ्ती से बात कराइएगा आप। तो अभी नहीं है, घर पे नहीं है। घर पे नहीं है? दारुल देवन से पढ़े हैं? नहीं, दारुल देवन से नहीं पढ़ा, बरेली से पढ़ा। तो वो भी देवबंदी है कि बरेली है? नहीं वो बरेली, हमको समझाते रहते हैं। तो फिर उनसे थोड़ी मुझे बात करनी है, जब बरेलवी है तो हमारा उनका अकीदा तो एक ही है ना। मुझे देवबंद के किसी मुफ्ती से बात करनी है। अच्छा मुझे मैं आपसे बात पूछता हूँ, ठीक है? बोलो। मैं आप एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि देखिए, जैसे मैं एक कहावत देता हूँ कि मैं गलत में आ गया हूँ, ठीक है, मैं सही छोड़ के मैं गलत में आ गया हूँ, ठीक है, आप लोग का मतलब से मैं गलत में आ गया हूँ। लेकिन आप ये बताइए, गौस पाक जो ये लिखे हुए हैं, गौस पाक ये बताया कि जो मुझसे मोहब्बत करेगा, फातिहा करेगा, दुरूद करेगा, हाँ, कितना भी जाके कबर पे, बताइए कबर पे जाके सजदा करता है, ये सब थोड़ी नहीं, सही थोड़ी नहीं है। इसलिए हमको लगा कि भाई तुम्हारे दिमाग में ना गोबर डाला है किसी ने। हमारे किसी उलमा का एक कॉल दिखाइए कि हमारे किसी उलमा ने ये बताया हो माज़अल्लाह के कब्रों पे जाओ और सजदा करो। चलो एक किसी आलिम का हवाला दो। अरे आलिम का हवाला देखिए, फिर वही बात, सुनिए, जो तुमने बका अपनी सड़ी हुई जबान से उसको साबित करो। मैं है ना, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, आपने जो बोला उसको साबित करो पहले। हमारे किस आलिम ने कहा है कि मजार पे जाओ और सजदा करो?
اچھا ایک بات بتاؤ, تمہاری جماعتوں میں جو یہ لوگ جاتے ہیں شراب پیتے ہیں, چرس پیتے ہیں, گانجا پیتے ہیں, جی کیوں کیوں کرتے ہیں یہ؟ شراب کیوں پیتے ہیں, گانجا کیوں پیتے ہیں؟ وہ تو سب پیتے ہیں. ارے تمہاری جماعت کے لوگ کیوں پیتے ہیں؟ سب کو چھوڑیے, تمہاری جماعت کے لوگ کیوں پیتے آپ ہیں؟ کی جماعت کی نہیں پیتے, آپ کی جماعت کی نہیں پیتے. ارے میں جماعتیوں کی بات کر رہا ہوں, تم تو اچھے لوگ ہو نا, جماعت میں جاتے ہو, ہر برے کام سے روکتے ہو, تو یہ شراب پینا, چرس پینا, گانجا پینا, یہ سب برا کام ہے نا, جی پھر کیوں نہیں روکتے؟ جی جس کو روکنا ہوتا ہے اس کو روکتے ہیں, وہی بات. جو نہیں ارے روکتا تو ہے اس یار کو چھوڑ کم دیتے علم ہیں. انسان کی جہالت کو دیکھ کر تم ہمارے اوپر تہمت لگاتے ہو, شرم نہیں آتی؟ میں آپ سے جو بات پوچھ رہا پھر ہوں وہی بات, تو آپ جواب ہی نہیں دے وہی رہے. جواب دیا میں نے, وہی جواب دیا. ارے جواب ہی کسی نہیں کم ہے, علم تو انسان جواب ہی نے, نہیں ہے, ایک منٹ, جواب ہی نہیں ہے آپ کا. میں آپ سے ارے کیا یار پوچھ رہا ہوں, آپ بول رہے کیا؟ تم نے کہا ہے کہ مزار پہ جا کے سجدہ کرنا کیسا ہے, تو میں نے تم ہاں سے بتائیے. کہا کہ ہمارے کسی ایک عالم کا حوالہ دیجئے کہ تمہارے فلاں عالم نے کہا ہے. تو پھر میں نے تم آپ سے کو یہ کہا, بول رہا چپیے, ہوں. ہاں پھر میں نے تم سے یہ کہا کہ کسی کم علم انسان کی جہالت کو دیکھ کے, اس کی کم علمی کو دیکھ کے تم پوری جماعت پہ ہماری حملہ کر دو گے. وہ دیکھیے یہیں پہ آپ اگر ارے دیکھیے دکھائیے کچھ نہیں, اپنے دیوبند کے مفتی سے بات کراؤ میری. وہ تو دیکھیے, وہ تو ہم بات کرا اچھا ہی تم دیں نے گے. مجھے کال کیا کیوں, یہ بتاؤ اب, کیوں میں کیا کال؟ اس لیے تمہیں پتا نہیں ہے کال آپ بڑے بڑے تمہارے دھلندروں کی پلائی کرتا ہوں میں, بڑے بڑے میں تمہارے جو دھلندر ہیں ان کی دھلائی کرتا ہوں میں. ہمت کیسے ہوئی تمہاری کال کرنے کی؟ میں نے کال آپ کو اس لیے کی ہے کہ اگر ہم گمراہ ارے ہوتے تو یار آپ تو اپنے علم کسی, دیجیے گا ہم کو. اپنے ہاں؟ بھائی اپنے کسی آپ ہم عالم کو لے کے آؤ نا, اکیلے کیسے آ گئے؟ اکیلے کیسے آ گئے, آپ ہم کو تمہیں سمجھائیے سمجھنا گا نا. نہیں ہے, تمہیں سمجھنا نہیں ہے بالکل بھی. آپ میں سمجھائیے گا سمجھا گمراہی رہا, میں, اچھا سنو, گمراہی میں اب ہوں گے ایک تو منٹ, آپ سمجھائیے گا ہاں تب ہم اب یہ آئیں بتائیے گے آپ, صحیح راستہ پہ. اب یہ ہاں بتائیے آپ, جی کیا معاذ اللہ خدا وہ کام کر سکتا ہے جو بندے کر سکتے ہیں؟ چوری, زناکاری, بلاత్కాری, قتل, کیا معاذ اللہ خدا بھی ایسا کرے گا؟ بندوں کی شادی ہوتی ہے, کیا معاذ اللہ خدا بھی کبھی شادی کرے گا؟ انسانوں کی, بندوں کی یہ اولادیں ہوتی ہیں, کیا معاذ اللہ خدا کی بھی کبھی کوئی اولاد ہوگی؟ جی نہیں, جی نہیں. تو جن لوگوں کا, جس جماعت کا یہ عقیدہ ہو گندا اور گھنونا, ناپاک عقیدہ, کہ معاذ اللہ کہ جو کام بندے کر سکتے ہیں وہ سب معاذ اللہ خدا بھی کر سکتا ہے. کہاں پہ لکھا ہوا ہے چیز؟ اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کیوں آ گئے تم یار منہ اٹھا کے؟ تو کہاں پہ لکھا تمہاری ہے 4 بتائیے کتابوں گا. کا نام لکھو, پڑھے لکھے ہو؟ ہاں بولیے بولیے. ہاں لکھو, سب سے پہلی کتاب یکروزی, رائٹر کا کیا؟ نام مولوی اسماعیل دہلوی, یکروزی. اچھا ٹھیک ہے. ہاں ہاں بولیے, دوسرا بولیے. دوسری کتاب لکھیے فتاوی رشیدیہ, اس رائٹر کا نام ہے مولوی رشید احمد گنگوہی. تیسرا بولیے. ہاں, اور تیسری کتاب کا نام ہے البراہین القاطیہ, اسی میں یہ سب رشید کچھ احمد لکھا گنگوہی ہوگا نے نا, لکھوائی ہے, اور لکھنے والے کا نام ہے خلیل احمد مٹوی. اسی میں سب کچھ لکھا ہوگا نا. ارے میں جیسے جیسے بتا رہا ہوں ویسے ویسے لکھو, اسی میں سب کچھ لکھا, اسی میں سب کچھ لکھا. 3 کتابیں بتا چکا ہوں, ایک ہی کتاب لگ رہی ہے تمہیں؟ ایک اور کتاب لکھو, تذکرۃ بولیے. الخلیل, لکھنے والے کا نام عاشق الہی میرٹھی. جی چلیے ٹھیک ہے. ہاں بولیے. دیکھیے, ہاں میں نے آپ کو اس لیے کال کیا کہ اگر ہم دیکھیے میں غلط نے آپ ہوں کو گے. سمجھایا, تم نے سمجھنے کی صلاحیت, تمہارے اندر ابھی سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. جو میں پوچھ رہا ہوں تم اس کا جواب ہی نہیں دے رہے ہو, کیونکہ تمہارے لوگوں کو پڑھایا سکھایا جو بہت زیادہ تھا نا, بہت زیادہ تم کو پڑھایا سکھایا جاتا ہے, اور یہ پڑھایا جاتا ہے کہ کسی سے بحث مت کرو, سمجھے, کسی سے الجھو مت. جی یہ تمہیں پڑھایا جاتا ہے, سکھایا جاتا ہے. جب کوئی بات ہوتی ہے تو کہتا ہے ارے بھائی اپنی روزہ نماز کرو, روزہ نماز کرو. ارے روزہ نماز کسی کام نہیں آئے گی جب تک کہ تم حضور سے محبت نہ کرو گے. اب یہ بتائیے جناب مجھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے یا پھر کوئی اور بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے علاوہ کوئی, ہمارے نبی کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ جی نہیں, وہ آخری نبی ہے. ہاں ماشاء اس کے اللہ علاوہ آخری کوئی نبی ہے. اچھا ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوگا نا؟ جی نہیں, ان کے علاوہ کوئی اچھا, نہیں آئے گا. تو جس نے اپنا عقیدہ یہ بنایا معاذ اللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت للعالمین جو یہ صفت ہے, یہ خاص حضور کے لیے نہیں ہے, کوئی اور بھی جو ہے رحمت للعالمین ہو سکتا ہے,
ایسا شخص آپ کے نزدیک کافر ہے یا مسلمان؟ کافر ہوگا وہ. اچھا چلیے کافر ہوگا نا. حوالہ غلط ثابت کرنے والے کو 10,000 کا نقد انعام. اگر اور کہو گے تو اور بڑھا دوں گا, ڈبل بھی کر دوں گا. ڈبل نہیں, اگر ٹیبل کہو گے تو ٹیبل بھی کر دوں گا. اگر کہو گے 1,00,000 روپے چاہیے تو 1,00,000 روپے کا انعام رکھوں گا. مگر کوئی اس حوالے کو غلط ثابت کر دے. لکھنے والے کا نام مولوی رشید احمد گنگوہی, کتاب کا نام ستابہ رشیدیہ. کسی شخص نے مولوی رشید احمد گنگوہی سے پوچھا کہ لفظ رحمت للعالمین خاص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے, یہ صرف خاص حضور کی صفت ہے یا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے, کسی اور کو بھی جو ہے یہ بول سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہے کہ لفظ رحمت للعالمین خاص صفت یہ صرف حضور کی نہیں بلکہ حضور کے علاوہ بھی کوئی اور ہو سکتا ہے. کیا رحمت للعالمین, سمجھے جناب؟ یعنی حضور کے علاوہ بھی کوئی اور دوسرا رحمت للعالمین ہو سکتا ہے. انہوں نے یہ کہا رحمت للعالمین کا مطلب ہے یعنی تمام عالم کے لیے رحمت بن کے آنا, مگر تمام عالم کے لیے کوئی رحمت بن کے آیا ہی نہیں. سمجھے بات ہے. ہاں, تو یہ آپ کے بقول آپ نے بھی مان لیا کہ یہ کافر ہے. اب دوسری بات, دوسرا بولیے ہم مان لیے, بولیے نا. ماشاء اللہ سبحان اللہ, مان گئے تو بہت اچھی بات ہے بھائی جان. اچھا دوسرا حوالہ سنیے. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا یہ صرف جاہلوں کا کم علموں کا عقیدہ ہے, یہ صرف جاہلوں کا ہی گمان ہے, یا پھر اس کو عالم بھی مانتے ہیں, عالموں کا بھی یہی عقیدہ ہے؟ عالم کا بھی یہی عقیدہ ہوگا نا, کیونکہ میرا آخری نبی وہی ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. اور جو یہ کہے معاذ اللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا یہ عوام کا خیال ہے, اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخری زمانے میں بالذات کچھ فضیلت نہیں. سمجھے حضرت؟ اگر ایسا کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو کیا وہ مسلمان ہے یا کافر؟ کافر ہے. کافر ہے نا, ماشاء اللہ. اس کتاب کا نام ہے تحذیر الناس, لکھنے والے کا نام ہے, رائٹر کا نام ہے مولوی قاسم نانوتوی. یہ دو آپ نے فارغ کر دیے, دونوں کو کافر کر دیا. اچھا دوسری بات, ایک کتاب ہے حفظ الایمان, اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو جانوروں کے علم غیب سے تشبیہ دی گئی. جی ہاں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ کچھ کہتے ہیں کہ حضور کو علم غیب ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ حضور کو علم غیب ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تھانوی جی نے علم غیب مانا اور حضور کا علم غیب ماننے کے بعد بتایا کہ معاذ اللہ اس میں کوئی حضور کی خاصیت نہیں, کوئی خصوصیت نہیں, کوئی تخصیص نہیں, کوئی بڑائی نہیں معاذ اللہ. ایسا علم غیب تو جانوروں, پاگلوں, بچوں, درندوں کو بھی حاصل ہے. کیا ہمارے نبی کا علم غیب ایسا ہی ہے جیسا جانوروں کو حاصل ہے؟ جی ہاں جی نہیں, آپ سے ایک ہے نا بات پوچھتا ہوں, ٹھیک ہے؟ ارے بات مت پوچھو, میں سمجھا رہا ہوں آپ کو. اگر سمجھنے کی صلاحیت ہے تو سمجھو, باقی اپنی بات مجھے بات میں کہہ رہا ہوں. پہلے ہاں نا میں جواب دے دوں. جو شخص یہ کہے کہ حضور کا علم غیب ایسا ہی ہے جیسا جانوروں, پاگلوں, بچوں, درندوں کا, تمہارا اور میرا, تو وہ شخص مسلمان ہے یا کافر ہے؟ وہ مسلمان ہو نہیں سکتا. کافر ہوگا نا. جی ہاں. آپ کے یہ 3 اکابر کافر ہو گئے آپ کے بقول, اور یہ آپ نے اپنے پختہ ایمان سے بولا ہے, آپ نے نبی سے محبت کر کے بولا ہے, اپنے نبی کی محبت اپنے دل میں رکھ کے بولا ہے. جی آپ دھوکے میں ان لوگوں میں, ابھی بھی میں کہتا ہوں. اچھا اب تیسری بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم زیادہ ہے یا شیطان کا علم زیادہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ ہے نا. جی ہاں. اگر کوئی یہ کہے معاذ اللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم شیطان اور ملک الموت کے علم سے کم ہے, اگر کوئی حضور کا علم زیادہ مانے شیطان سے تو وہ مشرک ہے معاذ اللہ. ایسا عقیدہ رکھنے والا, ایسا کہنے والا انسان آپ کے نزدیک مسلمان ہے یا کافر؟ میرے نزدیک کا, سب کے نزدیک کافر ہوگا. ماشاء اللہ سبحان اللہ, کیونکہ یہ شریعت کا قول ہے. کیونکہ کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ اگر علم عطا کیا ہے تو اپنے حبیب کو عطا کیا ہے. جی سمجھے؟ جی. تو جن لوگوں نے یہ کہا معاذ اللہ حضور کا علم اگر شیطان سے زیادہ مانا تو وہ مشرک ہے معاذ اللہ, شرک سے خالی نہیں ہے. تو یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ اگر علم کسی کو ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. مگر دوسری ان کی کتاب کہتی ہے معاذ اللہ کہ حضور سے زیادہ علم شیطان کا ہے. اگر شیطان سے زیادہ علم حضور کا مانا تو وہ مشرک ہو جائے گا معاذ اللہ. تو یہ اپنے ہی بقول, اپنے ہی فتوے میں, اپنی ہی کتابوں میں, اپنے ہی عقیدے میں گرفتار ہو جاتے ہیں, اور آپ نے بھی ان کے چاروں اکابرین کو کافر ثابت کر دیا. جی
किया ना? जी हाँ। आपकी जबान से अब बोलिए आप अपनी बात। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, ठीक है? मेरी थोड़े बात सुन लीजिएगा, उसके बाद आप बोलिएगा, है ना? जैसे मैं आपका बात सुन रहा था, ठीक है? आपसे एक बात पहला पूछता हूँ कि बताइए, गौस पाक एक जगह किताब में लिखे हुआ है, मतलब मुझे ध्यान नहीं है कौन सा किताब है, ठीक है? वो किताब में लिखे हुआ है कि जैसे अभी हम रोड पे चलते हैं ना, तो पानी पे चल रहे थे वो दोनों, वो और उसका साथी, ठीक है? और उस पानी पे चल रहे थे तो गौस पाक अल्लाह अल्लाह कह के वो पानी से निकल गए, ठीक है? पानी पे चलते निकल गया। और जब उसका मतलब मुरीद आया तो उसने अल्लाह अल्लाह बोला, तो मतलब पानी में डूबने लगा, और जैसे मतलब गौस पाक बोला तो पानी पर से उठने लगा, मतलब पानी उसको उठा दिया। ये बताइए, अल्लाह बड़ा है कि गौस पाक बड़ा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि तुम्हें बताने वाले ने गलत बताया है। ये हुजूर गौसे पाक का वाकया ही नहीं है, ये हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का वाकया है। हाँ हाँ सुन, हाँ नहीं तो बताइए कैसे? और दूसरी बात, आप मुझे अब ये बताइए कि अल्लाह के वलियों की जो करामत है और जो नबियों का मौजज़ा है, तो आपसे समझे, इसकी जरा तारीफ कीजिए आप। देखिए उसका मतलब ये है, एक मिनट मतलब अल्लाह से अल्लाह का नाम लेगा तो डूब जाएगा, मतलब एक मिनट उसका नाम लेगा तो उड़ जाएगा, ऐसा? एक मिनट है। ये बात ये है कि अभी जुनैद बगदादी तक वो पहुंचा नहीं, और अल्लाह को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, अल्लाह तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है जी। समझे जनाब? अल्लाह तबारक व तआला चाहता है कि मेरे महबूब बंदू की मोहब्बत मोमिनों के दिल में होनी चाहिए, समझे? एक मिनट, अरे यार फिर वही बात। अल्लाह ताला कुरान पाक में भी फरमाता है, ए महबूब, जो अल्लाह से मोहब्बत करने का वादा करते हैं, दावा करते हैं, उन्हें बताओ कि पहले वो मेरे नबी से मोहब्बत करें। जी। हुजूर की मोहब्बत ही हमारा ईमान है। अगर हुजूर की मोहब्बत के बगैर हम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हैं तो हमारा दावा झूठा है। जी, बात सही है आपका। अच्छा, जो हुजूर के गुलाम हैं, जो हुजूर के उम्मती हैं, जो जिनको हम अल्लाह का वली कहते हैं, जैसे हुजूर गौसे आजम हो गए, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह हो गए, हुजूर साबिर पाक कलियारी रहमतुल्लाह अलैह हो गए, हुजूर हाजी अली बाबा हो गए, मतलब कितनों का मैं नाम लूंगा, लेते लेते पता नहीं दिन गुजर जाएगा, रात गुजर जाएगी, अल्लाह के वलियों का नाम जिक्र खत्म नहीं होगा। खैर, जैसे हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह थे, ठीक है? हाँ, तो ये उनकी एक करामत थी, और करामत वो होती है जो लोगों के जहनों में ना आवे, जो लोगों की सोच और गुमान से भी दूर हो। ऐसे ही नबी का मौजज़ा होता है, जो लोगों की सोच तो क्या, उनके कभी जहन में भी कोई ऐसी बात ना आई हो। हमारी सोच, हमारी जो फितरत होती है, हम वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। जो हमारी अकल में ना आवे किसी भी तरह से, वो नबी का मौजज़ा होता है। अरे हमारे नबी ने उंगलियों से पानी निकाला। क्या उंगलियों से कभी पानी निकलता है कि खून निकलता है? उंगली से पानी निकलता है ना, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाले थे। मैं कह रहा हूँ, उंगली से खून निकलता है कि पानी निकलता है? खून निकलता है। खून निकलता है ना? जी। तो फिर हुजूर ने पानी कैसे निकाला? ये हुजूर का मौजज़ा है ना। अल्लाह ताला ने उसको ताकत दिया उतना। हाँ, तो अल्लाह ताला ने वहां भी ये दिखाया कि पहले मेरे बंदे तक पहुंच, पहले मेरे बंदे तक पहुंच, फिर मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर। बात सही है, लेकिन ये बताइए। हाँ, देखिए, आपको किसी ने धोखा दिया है, ठीक है? आप माने ना माने, मेरा काम नहीं है आपको जबरदस्ती मनवाना। आप उस बात को माने ना माने। अच्छा, अब चलिए ये बताइए, कोई मुर्दा कब्र से उठ के अपने घर आ सकता है? जी नहीं। हैं? जी नहीं। सच बोलो। जी नहीं। नहीं आ सकता? नहीं। मगर देवबंदियों के मौलवी कासिम ननौतवी मदरसा दारुल उलूम देवबंद पहुंच गए थे ये तो कब्र से उठ के। इल्म हमको नहीं है चीज का। अरे आपको इल्म नहीं है, मगर कैसे पहुंच गए? वही तो, कब्र से तो कोई जिंदा नहीं उठ सकता, लेने बात का इल्म नहीं है। मगर वो भी, हाँ, मगर वो जो है
कबर से उठ के कबर को चीर फाड़ के मदरसा दारुल देवबंद पहुंच गए, और पहुंचे इसलिए थे कि वहां जो है ना, वहां के उस्तादों में झगड़ा हो गया था, तो झगड़ा मिटाने के लिए गए थे, और झगड़ा मिटा के वापस फिर आ गए। और जिसके कमरे में गए थे ना, जिसके कमरे में गए थे, वो पसीने से तरबतर हो गया था, डर के मारे। अल्लाह बेहतर जाने डर के मारे के खुशी में, अल्लाह बेहतर जाने वो क्यों हुआ था तरबतर पसीने में। सुनिए, उसका नाम है रफीउद्दीन। अच्छा, थानवी जी के एक दादा हैं, वो मरने के बाद मिसले जिंदा के अपने घर पहुंच गए, और वो भी मिठाई लेकर, और उन्होंने वादा किया कि भी किसी को बताना नहीं, किसी को बताना नहीं, हम इसी तरह रोज आया करेंगे। रोज आने का वादा भी कर रहे हैं। तो ये चीज का तो इल्म नहीं है आप। अरे भाई, तुमको कुछ भी इल्म नहीं है मेरे दोस्त, तुमको कुछ भी इल्म नहीं है। मैं 15 साल से ज्यादा रहा हूँ जी। मेरे पास फालतू बातों के लिए फालतू बातें बहुत है, और सही बातों के लिए सही बात बहुत है। दुनिया का कोई देवबंदी अभी तक पैदा नहीं हुआ है, किसी देवबंदी औरत ने ऐसा बच्चा नहीं जाना है जो मेरे सामने अपने आप को सही साबित कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे उलमा की तो शान बढ़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह, समझे? मेरे उलमा की तो शान बढ़ी है। पूरी दुनिया में किसी देवबंदी औरत ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया जो मेरे सामने अपने आप को वो सही साबित कर दे और हमें गलत साबित कर दे। चलिए ठीक है, मतलब आप माने ना माने, देखिए, आप तौबा करें ना करें, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मगर अगर तौबा कर लेंगे तो जहन्नम की आग से बच जाएंगे, क्योंकि आपने अपने मुंह से इन चारों को काफिर साबित किया है। और फिर भी अगर इसी काफिर जमात में रहेंगे, इसी जहन्नमी जमात में रहेंगे, तो आप खुद भुगतेंगे उसको। इससे अच्छा है, बेहतर है कि आप तौबा कर लें, कलमा पढ़ लें अभी अभी। आपसे हम चलिए हम पढ़ेंगे, आप भी पढ़ेंगे, ठीक है। आपसे ना 2 बात और पूछूं ना, उसके बाद है ना हम कलमा पढ़ लेंगे, ठीक है। जी बोलिए। एक बात और पूछते, जैसे मैं पहले मतलब बरेली था, ठीक है, तो मैं अपने दादा और दादी के साथ मजार पे जाते थे, ठीक है, मतलब चचा के लड़का के साथ सबके साथ जाते थे मजार पे जाके देखते थे कि वहाँ पे मतलब अगरबत्ती बहुत जलता था, और उसके बाद है ना चादर एकदम चादर पे चादर चढ़ा रहे, और उसके बाद क्या सब चादर को मतलब अपना माथा है ना चादर पे रख रहा है, ठीक है, एकदम सजदा कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि सजदा कर रहा है, ठीक है। तो ये बताइए गलत है कि सही है? अच्छा, तो अब इसकी नौयत समझनी चाहिए कि किसी ने अगर वहां चादर चढ़ाई एक चादर होते हुए भी, तो ये शिर्क है, कुफ्र है, क्या है, इसकी नौयत समझनी चाहिए। हैं? शिर्क है। शिर्क किस किताब में पढ़ा है आपने शिर्क है? मेरी बात तो सुनिए, पहले आप मुझे ये बताइए किस किताब में पढ़ा है कि ये शिर्क है। अच्छा, किसी दारुल देवबंद के मुफ्ती से कहलवा दोगे कि मजार पे चादर डालना शिर्क है? मैं मजार पे चादर डालने के लिए शिर्क नहीं बोला, और बात तो सुनिए। हाँ, शिर्क क्या शिर्क के लिए बोला हूँ कि अल्लाह के अलावा किसी और के सामने अपना माथा टिका देना ये शिर्क है। चलिए अब उस पर भी बात करते हैं। चलिए अब मुझे ये बताइए कि आपको कैसे पता चला कि वो उसने जो सजदा किया था वो किस तरह किया था, कौन सा सजदा किया था? अब मैं आपको बता दूं, 1 मिनट देखिए, बंदे ने उनको खुदा समझ के सजदा किया कि अल्लाह का वली समझ के सजदा किया। पहली बात तो हम सजदा नहीं करते, चादर चूमते हैं, अपनी आंखों को उनकी चादर लगाते हैं, ठीक है। पहले बात सुनिए, देखिए मैं आप ही की बात का जवाब दे रहा हूँ, आपकी पहले मैंने बात सुनी, अब आपकी बात पूरी हो गई, मैं आपकी बात को समझ गया, ठीक है। अब जब मैं समझ गया तो मुझे जवाब देने की तो थोड़ी बहुत मोहलत दीजिए ना आप। तो हम जो है वो अल्लाह के वली के दर की चादर, अल्लाह के वली के मजार की चादर चूमते भी हैं, आंखों से भी लगाते हैं, ठीक है। और उसी चादर चूमने को लोग कह देते हैं कि देखो भाई बरेलवी सजदा कर रहा है। खैर, अगर किसी ने माथा टेक भी लिया, किसी जाहिल ने, कम इल्म इंसान ने, किसी बगैर पढ़े इंसान ने, ठीक है, और पहली बात यह है कि अल्लाह के वली की बारगाह में हिंदू भी जाता है, मुस्लिम भी जाता है, सिख भी जाता है, ईसाई भी जाता है, तो क्या पता वो कौन है जो ऐसा कर रहा है, जिसने सजदा किया, जिसको तुमने देखा। खैर, दूसरी बात मैं कह रहा हूं, अगर किसी मुसलमान ने भी ऐसा किया, मैं तुम्हारे सारे डाउट दूर कर दूंगा। अगर किसी मुसलमान ने भी ऐसा किया तो उन्हें खुदा समझ के किया या खुदा का वली समझ के किया, वो सजदा इबादत, 1 मिनट,
सुनते रहिए, पूरा डाउट क्लियर करूंगा तुम्हारा। अगर उसने सजदाए इबादत किया तो ये शिरक है, यकीनन शिरक है। और अगर सजदाए ताजीम ही किया, ताजीम की नियत से किया, ये तो ये हराम है। सजदाए ताजीम ही किया तो ये हराम है। अगर खुदा समझ के किया तो ये शिरक है, यकीनन शिरक है, वो हमारे नजदीक भी शिरक है। अब बताइए आपका क्या कहना है इसमें? जी, अगर कोई भी सजदा करेगा, हम तो देखते नहीं है उनको कि कैसे फिर वही बात, जब तुम देखते नहीं हो तो तुम्हें पता कैसे चला कि बरेलवी सजदा करता? अच्छा, हमारे कितने आलिम सजदा करते हैं जरा बताएं। हमारे किस किस आलिम ने जो है सजदा करने की इजाजत दी है, और हमारे कितने आलिम मज़ार पे आके सजदा करते हैं? बोले। हम 1 साल से देवबंदी मजहब को कबूल किए हुए, ठीक है। देखिए 18-19, सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं 19 साल का हूँ, ठीक है। थोड़ा जोर से बोलो, आवाज आपकी कम आ रही है। 18 साल से, मतलब मैं 19 साल का हूँ, खाली 1 साल से मैं देवबंदी को मजहब को कबूल किया हूँ, ठीक है। 18 साल तक मैं बरेली में था, ठीक है। लेकिन बरेली वाले ने, मैं उनका भी मनाजरा सुनता था, मैं उसका बयान सुनता था, लेकिन क्या है उसमें मैं जाता था मजार पे, मैं अपने दादी दादा चचा सबके साथ जाते थे। मेरा चचा तो ऐसे सजदा कर देते थे कि लग रहा है क्या नमाजी पढ़ रहा है। मैं बहुत जब बोल रहा हूँ ना, मैं मजार पे जाता था ना, तो मेरे को देख के मैं पढ़ाई करने का। एक मिनट। अच्छा, आपके जो चाचा हैं, एक मिनट, आपके जो चाचा हैं आलिम है? जी नहीं, जाहिल है, खाली कुरान शरीफ पढ़े हुए हैं बस। अच्छा, तो उनसे आपने पूछा कि आपने सजदाए इबादत किया है या सजदाए ताज़ीमी? हम ये पूछे नहीं है, सीधे ये पूछे थे। देखिए, मैंने अभी क्या कहा था कि इनकी नौयत जान लेना चाहिए। मैंने कहा था ना कि आपका मैं पूरा डाउट क्लियर करूंगा इंशाल्लाह। तो अब आप ही ने बोले है ना, आप ही ने बोले है ना। मैंने कहा में क्या है, सुनिए आपने बोले। अरे यार, मैंने कहा सजदाए ताज़ीमी और सजदाए इबादत। अगर सजदाए इबादत किया है, उनको अल्लाह का वली नहीं जाना, बल्कि उनको खुदा समझ के सजदा किया और सजदाए इबादत किया, तो ये शिरक है, यकीनन शिरक है। हमारे आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने इसको पूरी वजाहत के साथ जो है बयान किया है। और अगर किसी ने सजदाए ताज़ीम ही किया तो ये हराम है। आपको किसी ने गलत पढ़ाया है दोस्त। अगर कोई भी सजदा करेगा तो यही दोनों करेगा, और मोहब्बत में करेगा ना तो उसको तो गुनाह होगा और पूरा नेकी चला जाएगा उसका। और ऐसा ही इबादत के तौर पे करेगा तो काफिर हो जाएगा, और मोहब्बत में करेगा मुशरिक हो जाएगा जनाब, मुशरिक हो जाएगा। तुमको तारीफ भी ढंग से याद नहीं कि तारीफ क्या होगी। तुमको जुमले अपने खुद दुरुस्त नहीं है, मालूम नहीं है मेरे दोस्त। खैर, मैं बोला ना, आप चाहोगे तो तौबा करोगे, नहीं चाहोगे तो उसी जहन्नमी जमात में रहोगे, क्योंकि अब आपने खुद ही अपने तमाम अकाबिरीन को काफिर कह दिया है। अच्छा, ये बताइए, आपके जो पहले पैगंबर हैं वो कौन है, आदम अलैहिस्सलाम या शंकर भगवान? जी, आपके पहले पैगंबर कौन है? आदम अलैहिस्सलाम। तो जिसकी जमात में शंकर भगवान को पहला पैगंबर माना जाता हो, वो जमात हक पर हो सकती है क्या? तो मैंने नहीं माना है ना। फिर वही बात, ये कह के पीछा नहीं छूटेगा, आप उसी जमात में हो ना। अच्छा, दूसरा हवाला सुनिए। शरीयत का मामूल है, अल्लाह और उसके रसूल का फरमान है कि दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करेगा, मैदान महशर में, कयामत में, वो उसी के साथ उठेगा। तो अगर आप देवबंदियों में हो, देवबंदियों से मोहब्बत करते हो, तो ये मत समझना कि हमारा जो वहां उठना होगा वो ईमान वालों के साथ होगा, नहीं, उन्हीं काफिर और जहन्नमियों के साथ होगा, थानवी, नौतविया, मैटवी, गंगोही और इनके चेलों के साथ। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, ठीक है? बोलिए। देखिए क्या होता है, मैंने बरेली की मस्जिद में कम से कम 18 साल नमाज पढ़ा, ठीक है? मैं कह रहा हूँ 18 नहीं, तुमने 18,000 साल पढ़ा, ठीक है? मैंने 18 साल नहीं, बल्कि 18,000 साल या 1800 साल। मेरी बात तो सुनिए आप पूरी मुकम्मल। क्या कहते हैं, मतलब मेरे साथी भी है, एक बरेली है, अब भी मेरे से बात किए थे उससे मैं उसी से सुना हूँ कि तू अच्छा ये बता, घुटना को क्यों नहीं खोल के तू नमाज पढ़ता है? तो उसने मुझे क्या बोला कि मेरा मौलाना नहीं बोलता है, मतलब झाँप के पढ़ो। ऐसा मालूम है, घुटना को अगर झाँप के पढ़ेगा ना नमाज, तो नमाज ही नहीं कबूल होता है। तो वो लोग क्यों पढ़ता है ये बताइए? आपका मौलाना सब है ना, वो घुटना खोल के पढ़ता है, लेकिन जो उसके पीछे नमाज सब पढ़ता रहता है ना, वो घुटना सब झाँप के हुआ रहता है। चुप जाइए यार, चुप जाइए आप। वो घुटना नहीं होता, उसको टखना बोलते हैं।
टखना या घुटना दोनों होते हैं। अरे यार घुटना ऊपर होता है, टखना नीचे होता है। तो वही अगर घुटना खोल दिया तो सत्र औरत ही खुल जाएगी, और सत्र औरत को ढांपना, सत्र औरत को छुपाना ये नमाज में फर्ज है। तो ये बताइए, तो ये लोग क्यों नहीं अच्छा एक मिनट, उसकी मैं वजाहत कर दूं, टेंशन मत लीजिए, उसकी भी वजाहत करूंगा। खैर तुम पढ़े लिखे नहीं हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरे सिर में दर्द हो रहा है तुमसे बात करके, क्योंकि तुम समझने के लिए तो आए नहीं हो, सिर्फ दिमाग खराब करने आए हो। मगर फिर भी बताऊंगा इंशाल्लाह, मैं फिर भी तुम्हें बताऊंगा। तुम तौबा करने वाले तो नहीं हो, मुझे नहीं लगता कि तुम तौबा करो, मगर फिर भी तुम्हें बता देता हूँ। वो घुटना नहीं होता, टखना होता है। टखना। और तुम्हारी जमात के इस गिरोह की पहचान मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले करा दी। तुम जो अपना टखना खोलते हो ना, जरूरत से ज्यादा जो है अपना पजामा ऊंचा रखते हो, या तुम्हारी जमात के लोग ऊंचा रखते हैं, जरूरत से ज्यादा। अगर थोड़ा सा हवा का झोंका आ जाए तो घुटना ही दिख जाए, समझे। दूसरी बात, ये जो हुक्म आया था ये इसलिए आया था कि अबू जहल, उतबा, शैबा, उसके तमाम शयातीन, समझे, मुसलमानों को दिखाने के लिए बड़े बड़े कपड़े सिलवाया करते थे, और अबू जहल का इतना लंबा जुब्बा था कि उसको 2 लोग पीछे से आगे से पकड़ के चलते थे, समझे। जी बोलिए। हाँ, वो तंजिया ऐसा कपड़ा सिलवाता था जी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका, और भी बहुत सारे मुनाफिकीन लोग भी थे, तो फरमाया कि जो टखने से नीचे कुर्ता, ये पजामा या लुंगी पहनेगा, उसका वो हिस्सा जो है जहन्नम में जलेगा। और तुमने कहा कि नमाज नहीं होगी, तो मुझे दिखा दीजिए वो कौन सी हदीस है जिसमें हुजूर ने फरमाया हो कि जिसका लुंगी या पैजामा टखने से नीचा हो उसकी नमाज नहीं होगी। चलिए एक हदीस पेश कीजिए। मेरे को जो बताया मैं उसी का बात बोल रहा हूँ। अरे मेरे दोस्त, मैं वही तो कह रहा हूँ, आपको धोखा दिया गया है। ऐसा? हाँ, आपको धोखा दिया गया है दोस्त। और मैंने जो हवाला बताया है, मैंने जितने भी हवाले बताए, अगर उनमें से कोई एक हवाला गलत साबित कर दे तो मैं उस टाइम में आपको कह रहा था 10,000 रुपए दूंगा, फिर मैंने कहा मैं 1 लाख रुपए दूंगा। अब मैं कह रहा हूं मैं उसको पैसों से वजन में तोल दूंगा, जितना उसका वेट होगा, जितना उसका वजन होगा। इस टाइम पे सबसे बड़ा नोट हमारे इंडिया का 2,000 का नोट है जी। मैं 2,000 के नोटों में उसको तोल दूंगा इंशाल्लाह। पर मेरा कोई एक हवाला गलत साबित कर दे जो मैंने आपको बताया था। जी हाँ, अच्छा देखिए, अगर आपको ईमान, हाँ, अगर आपको ईमान की दौलत चाहिए तो सच्चे दिल से तौबा कर लीजिए और इन दुश्मनाने रसूलों से निकल जाइए, अपने बाप दादा वाले रास्ते पे चले जाइए दोबारा से, समझे। जी जी, क्योंकि वही है ईमान वाले। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं बड़े बड़े गुनहगारों को बख्शवाऊंगा, बड़े बड़े गुनहगारों की शफाअत कराऊंगा। तो हम गुनहगार तो है मगर गद्दार नहीं। हमारे अमल खराब है, हमारे अमल जरूर खराब है, मगर हमारा अकीदा खराब नहीं है जी। हाँ, इन शैतानों का अकीदा है माज़अल्लाह के नमाज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल लाना गधे और बैल के ख्याल से बदतर है, बुरा है। तो इनकी तो नमाज ही नहीं है ना, इनकी नमाज ही नहीं है किसी भी तरह से। अगर किसी का दिल चाहे दुनिया का सबसे बड़ा आलिम हो, किसी भी कोने का रहने वाला हो,